Good morning, student. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Okay. Any idea about last lecture? Anybody? System of linear equation by Gauss elimination method and Gauss Jordan method. Very good, Sivan. Very good. We discussed about the system of linear equations by using Gauss elimination and Gauss Jordan method. So today also we discuss with that topic. Okay. Then you can see in my presentation. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so we are discussing the last topic of this unit. Okay, solution of system of linear equations by using Gauss elimination and Gauss Jordan method. After that, our unit is completed. So we start with that topic. Yes, system of linear equations. Okay, so we start with that. We discussed mathematical form of the system of linear equation. Then we also discuss about the matrix form of the system, and we define two different system, homogeneous system and non-homogeneous system. If the b is equal to 0, then you can say that the homogeneous system, and b not equal to 0, then you can say that non-homogeneous system. Then we define two special matrix, coefficient matrix and augmented matrix. We already discussed about this. Then we discussed about the solution of homogeneous system. So there are two possible solutions for homogeneous system. Number one, trivial solution, and number two, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. ओके, सो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, and if rank of coefficient matrix less than number of unknowns, then the system has infinite many solution and equal to then trivial solution. Okay, we discussed about that. Then for non homogeneous system we have three different possibilities. If rank of augmented matrix and rank of coefficient matrix both are not equal, then the system is said to be inconsistent. Inconsistent means the system has no solution. Okay. If rank of augmented matrix equal to rank of A equal to number of unknowns, then the system has unique solution. And if rank of augmented matrix equal to rank of A, which is less than number of unknowns, then the system has infinite many solutions. So for non-homogeneous system, we have three possibilities for solution: in no solution, unique solution, and infinite many solution. And we already discussed three cases for that. So how many examples we already discussed? Sir, till that Okay. independent solution. Sorry. Sorry, how many examples? Three. Two or three? Three, yes, sir. Three. Three, Okay. sir. Okay. So this is your first example. 2x plus y minus z equal to 4. X minus y plus 2z equal to minus 2. Minus x plus 2y minus z equal to 2. This is your example number 1. Then example 2 is 2x plus z equal to 3, x minus y plus z equal to 1, 4x minus 2y plus 3z equal to 3. By using Gauss elimination and Gauss Jordan method, we already discussed the solution of this problem. In last, we discussed 4x minus 3y minus 9z plus 6 double equal to 0, 2x plus 3y plus 3z plus 6 double equal to 6, 4x minus 21y minus 39z minus 6 double equal to minus 24. We discussed about this. Okay, so I am repeating it so you can understand very well. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये सिस्टम कौन सा है? होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस? Non Non-homogeneous. 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 Okay. In non-homogeneous system, we start with the augmented matrix. So augmented matrix for this system is 4 minus 3 minus 9, 6.
2 3 3 6 4 minus 21 minus 39 minus 6. This is my A and this is my B. B means equal to K right side. So 0 6 and minus 24. Okay, तो ये B की एंट्रीज है और A की एंट्रीज, that means augmented matrix AB. Now you have to convert this into row echelon form. That is the method of Gauss elimination. And if you convert this into reduced row echelon form, then it is known as the Gauss-Jordan method. तो सबसे पहले हम Gauss elimination को concentrate करेंगे. So convert this matrix into row echelon form. So हमने convert करने के लिए start किया था, तो R1 और R2 को interchange कर दिया. उसके बाद नीचे की एंट्री दोनों 0 बनाया और उसके बाद हमने 0 बनाने के बाद बीच वाला एंट्री के नीचे 0 बनाया. ओके, देन वी गो फॉर दी थर्ड. यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे -1/3 कर दिया, तो 3 5 2 4 कर दिया. ओके, अब यहाँ दिस इज माय रो echelon फॉर्म. ओके, दिस इज रो echelon फॉर्म. सो रो echelon फॉर्म के लिए हम चेक करेंगे कि which is our possible solution. Okay, तो यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? 2. रैंक ऑफ A मींस इतने का ही, ये मैट्रिक्स जो है आगे वाला, उसका रैंक कितना होगा? 2. एंड नंबर ऑफ अननोन्स मींस जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल है x y z एंड w. ये 4 वेरिएबल्स है, दैट मींस 4 अननोन्स वेरिएबल है, तो 4 इक्वल टू 4. ओके, नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू 4. तो यहाँ पे 2 लेस देन 4 होगा. नाउ वी टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मींस उससे हमको इंडिपेंडेंस कितने मिलेंगे. तो यहाँ पे जो आपका 4 है वेरिएबल -2 रैंक, वो दोनों करेंगे तो 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे. मींस आपको जो बाकी के हमारे पास क्या है, देखो x, यहाँ पे देखो x y z एंड w, वी हैव 4 अननोन्स. अब इसमें से जो z एंड w लो या फिर दूसरे 2 लो, लेकिन ये दोनों हैं, उसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा, और वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, और जो बाकी के दोनों हैं वो डिपेंडेंट होंगे. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. डन? आर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट? ओके, देन इफ यू थिंक अबाउट द गॉस एलिमिनेशन, तो गॉस एलिमिनेशन के लिए आपको क्या करना है, तो इसको इक्वेशंस में ट्रांसफर करना है. तो इक्वेशन में ट्रांसफर किया, जो रो इक्वेशन फॉर्म था उसको, उसमें हमको 2 इक्वेशन मिलेंगे. 2 इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें हम z इज इक्वल टू k1, फर्स्ट में नहीं सॉरी सेकंड में, z इज इक्वल टू k1 एंड w इज इक्वल टू k2 कंसीडर कर रहे हैं, तो उससे हमको y मिलेगा यहाँ पे. ओके, एंड सेम if you substitute the value of z, w and y in equation 2, so we can find the value of x also. So x equal to 1 plus k1 minus 2k2. So this is the solution by using the Gauss elimination method. Is there any doubt up to here? No, sir. No, sir. No, sir. Then yes. इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस लिस्ट में है ना? हाँ है. बहुत मतलब आंसर में अलग आता है. हाँ, we will discuss it in doubt session. Okay, we arrange one doubt session for that. Then at that time we will discuss about the practice work example. Okay. Then okay. सर Yes. कंसिस्टेंट सिस्टम में अगर होमोजीनियस सिस्टम है और उसमें हमें चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हम सिर्फ डिटरमिनेंट से बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं, या फिर हमें ये पूरा करना पड़ेगा? नहीं, कंसिस्टेंट सिर्फ पूछा है तो, लेकिन आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. सर बट होमोजीनियस अगर हो तो वो तो हमेशा कंसिस्टेंट ही होती है ना? हाँ, वो तो हमेशा कंसिस्टेंट ही होती है. हाँ, तो फिर हम होमोजीनियस डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में पूछा है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा है, तो हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल के भी तो बता सकते हैं कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वो कंसिस्टेंट है. हाँ, तो उसका रैंक देख के वो तो कंसिस्टेंट ही होगा, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन में देखना है कि वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है या फिर
इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो चेक करना है तो आप रैंक वाली कोई भी मेथड्स यूज करके उसको चेक कर सकते हो। पर सिर्फ इतना ही पूछा हो कि कंसिस्टेंट है या नहीं तो क्या करेंगे? वो तो कंसिस्टेंट ही होगा ना बेटा, होमोजीनियस तो। नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन है उसमें असाइनमेंट, इसलिए। असाइनमेंट में मींस किस कौन से असाइनमेंट में? आपने जो एग्जांपल दिए है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ हाँ उसमें। ओके हाँ वो देख लेंगे हम, चलो डाउट सेशन में हम कर लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट ही होता है वो तो उसमें चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके 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 देन फॉर गॉस जॉर्डन मेथड वी गो फॉर द रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द लास्ट रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म हमारा लास्ट मिला है उसको हम रिड्यूस में ट्रांसफर करेंगे। तो रिड्यूस के लिए सिर्फ हमको 3 को 0 बनाना है, तो 3 को 0 बनाएंगे। सो 3 को 0 बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, तो वो सीधा 0 बन गया। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि जब हम इनवर्स कर रहे थे तो इनवर्स के लिए क्या करते थे, लीडिंग को क्या बना रहे थे, 1 बना रहे थे। एम आई राइट? यस सर। लेकिन जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको सिर्फ रो इक्विवेलेंट फॉर्म जैसा मिल गया है तो आप सीधा इक्वेशन में ही कन्वर्ट करने वाले। वहां पे तो क्या था कि वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए हम वहां पे 1 बनाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 बनाओ। आर यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस सर अगर बनाएगा तो चलेगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप बनाएंगे तो इट इज गुड फॉर यू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं बनाते हैं तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वांट टू से दैट। ओके, आंसर तो सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे गॉस जॉर्डन का मुझे यूज करना है तो आई कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू इक्वेशन। तो इक्वेशन में मैंने बाद में कन्वर्ट कर दिया, तो 2x माइनस 2z प्लस 4 डबल इक्वल टू 2, 3y प्लस 5z प्लस 2 डबल इक्वल टू 4। तो z मेरा मिल गया, w मिल गया। अब उससे मैं y फाइंड करूंगा एंड x फाइंड करूंगा। ओके, तो x मेरा मिल जाता है, y मिल जाता है। तो इसको एक सेट में लिख दो, है ना, लिखा ही होगा, देखो सॉल्यूशन सेट। यस, सॉल्यूशन सेट इज 1 प्लस k1 माइनस 2 k2, दिस इज माय x, दिस इज माय y, z and w, and k1 k2 belongs to r, that means it should be real number. Okay, is there any doubt in this example? ये हमने कर दिया था लास्ट में, आई थिंक, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर Okay, now we go for the next example. 3x plus y plus 2z equal to 0, x minus 2y plus 3z equal to 0, x plus 5y minus 4z equal to 0. So which system is given? Homogeneous. Homogeneous. So when we have the homogeneous system, to start with the A coefficient matrix, that means 3 1 2 1 minus 2 3 1 5 minus 4. Okay, now convert this into row equivalent form for Gauss elimination, and for Gauss Jordan you have to convert into reduced row equivalent form. Okay, so इसको row equivalent form में ट्रांसफर करेंगे तो पहले R1 and R2 को इंटरचेंज कर देता हूँ ताकि 1 आ जाए, है ना। तो 1 minus 2 3 कर दिया, 3 1 2 कर दिया, 1 5 minus 4, it's done. Then R2 tends to R2 minus 3 R1 and R3 tends to R3 minus R1. So if I do this, then my equivalent matrix is 1 minus 2 3, no change, 3 minus 3 0, 1 minus plus 6, so 7, 2 minus 9, that means minus 7. R3 tends to R3 minus 1 means 1 minus 1 0, 5 minus minus plus 2 7, minus 4 minus 3 minus 7. Okay, then R3 tends to R3 minus R2. Okay, so if you do this, then the equivalence matrix is 1 minus 2 3 0 6 minus 7. Please mute your mic, student. Okay, then last 0 7 minus 7 0, minus 7 plus 7 0. So this is my row equivalent form. Is it okay?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ पहले चेक करो कि कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम चेक करेंगे रैंक ऑफ ए। व्हाट इज माय रैंक ऑफ ए? 2. नंबर ऑफ अननोन्स 3. unknowns 3. Okay, that means 3 equal to number of unknowns which is less than हो गया ये 2 less than 3. तो which solution is possible? Infinite. Infinite solution. Okay, अब infinite many solution find कर रहे तो independent solution find कर दे। तो independent के लिए क्या करना है? 3 minus 2 तो क्या करना पड़ेगा? 1। तो एक वेरिएबल को आपको assume करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम assume कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा रिवर्स प्रोसेस मीन्स इक्वेशन में ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है लेकिन हमको पता है कि होमोजीनियस सिस्टम इसलिए इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 7y माइनस 7z इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ आई एम एज्यूमिंग दैट z इज इक्वल टू k एंड k बिलोंग्स टू r। ओके, तो व्हाट इज माय y? तो यहाँ से आप देखें दिस इज y इज इक्वल टू z। ओके, तो यहाँ पे y भी मेरा k ही मिल जाएगा और y k हो गया तो x क्या होगा? देखो x माइनस 2k प्लस 3k इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस k। इज इट ओके? Yes, sir. I have x, y, z by using Gauss elimination method. अब गॉस जॉर्डन के लिए क्या करेंगे? इसी मैट्रिक्स को रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म में ले जाना है। तो आई स्टार्ट विद दैट। सो यहाँ पे देखो लास्ट रो में तो कोई लीडिंग जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसी को सिर्फ 0 बनाना बाकी बचा। तो r1 टेंड्स टू पहले r2 को 1 बना देते थे। चलो तो माइनस 1/7 r2 हो जाएगा। तो ये मेरा मिलेगा 1 माइनस 2 3 0 1 माइनस 1 0 0 0। नाउ आई कैन make 0 in row 1. So r1 tends to r1 plus 2r2। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 माइनस 0 1 माइनस 2 प्लस 2 0 एंड 3 यहाँ पे माइनस 2 आएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 माइनस 1 नो चेंज 0 0 0 नो चेंज। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म। ओके, अब रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म मिला तो आई वांट टू यूज द गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन के लिए फिर से इक्वेशन बनाएंगे। सो x प्लस z इक्वल टू 0 y माइनस z इज इक्वल टू 0 एंड लेट z इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे आप देखो y भी मेरा k हो गया एंड x मेरा माइनस k हो गया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो आई हैव सेम सॉल्यूशन। तो दोनों में सॉल्यूशन होगा मेरा माइनस k। इज इट ओके? इज देयर एनी डाउट? No, sir. हमने कोई No, एक sir. करेंगे तो चलेगा? सॉरी बोलो। हमने कोई एक मेथड से कैलकुलेशन करेंगे तो चलेगा कि नहीं? कौन सी मेथड से? अब गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन, वो दोनों में से एक से करेंगे तो चलेगा? आपको स्टेटमेंट में दिया ही होगा कि बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन या फिर गॉस जॉर्डन। मुझे गॉस एलिमिनेशन से पूछना है तो मैं सिर्फ इतना एलिमिनेट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व द सिस्टम बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पे मुझे गॉस जॉर्डन से पूछना है तो इसको एलिमिनेट कर दूंगा बाय गॉस जॉर्डन मेथड। अगर कुछ भी नहीं लिखा है और बोला है कि सिर्फ सॉल्व द सिस्टम देन यू कैन यूज एनी ऑफ देम। मींस आप दोनों में से कोई भी यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। इज इट ओके? ओके सर। ओके, देन यहाँ पे देखो रिवीजन करवा देता हूँ। सॉरी, ओके, सो यू कैन सी हियर। यहाँ पे हम रिवीजन कर देते। तो ए मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, उसको मैंने कन्वर्ट किया रो इकोलॉन फॉर्म में। तो यू कैन सी दिस इज माय रो इकोलॉन फॉर्म। यहाँ पे 7 में कन्वर्ट कर दिया, 7 से डिवाइड करके 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे 2 लेस देन 3 नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज 3 - 2 1। गॉस एलिमिनेशन से बाद में मैंने इक्वेशन में ट्रांसफर कर दिया।
तो मुझे मिल गया z इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k एंड x इज इक्वल टू माइनस के बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन। अब जो भी मैट्रिक्स हमको मिला था उसको हम रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे तो -2 विल बी 0, तो -2 को 0 बनाएंगे तो R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2, तो उसको 0 बनाए, तो उससे गॉस जॉर्डन मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए उसका इक्वेशंस में ट्रांसफर करो तो x प्लस z इज इक्वल टू 0, y माइनस z इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू k, देन वी हैव x इज इक्वल टू माइनस k एंड y इज इक्वल टू k, the solution side is minus k k k, k belongs to r. So how many students understand this solution? Please raise your hand quickly. Very good. 53. Please raise student. If you have any question then you can discuss with me. Otherwise please raise your hand. Anand, Riti. Okay, Anand, Dimple, Himanshu, Riva, yes, Laksh, Parth, Pradeep Kumar, Kush, Kishan, Malviya, Kishan, Raj, Ganatra. Is there any doubt? If you have doubt then please discuss with me. Okay, I consider that you have no doubt because I have a doubt, are you there or not? Okay, so next question is very important. Consider the system of linear equations x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 10, x plus 2y plus lambda z is equal to mu. So find the values of lambda and mu so that the system has unique solution, has infinite many solutions and inconsistent. Inconsistent means No solution. नो सॉल्यूशन। no solution. Solution. So अगर आपका अंडरस्टैंडिंग पावरफुल होगा तो ये एग्जाम्पल आप इजीली कर पाएंगे, इसमें कुछ है ही नहीं लेकिन थोड़ा समझना है, तो यहाँ पे देखते हो। चल, सो गिवन सिस्टम इज होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस? Non-homogeneous. Non-homogeneous. नो नो Non-homogeneous. Non-homogeneous, we start with the augmented matrix or simple matrix? Augmented matrix. Augmented. Augmented. 1 1 6 1 2 3 and 1 2 lambda mu. Okay, so this is my augmented matrix. Now I convert this matrix into रो इक्विवेलेंट फॉर्म और रेडियस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं बोला है कि बाय गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन, सो आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन इजी कौन सा रहेगा? Elimination. गॉस एलिमिनेशन में जल्दी आंसर मिल जाता है ना। गॉस जॉर्डन में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो टाइम सेव करना है तो गॉस एलिमिनेशन से जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों को मुझे 0 बनाना है, तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। सो माय इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज 1 1 1 6, नो चेंज। यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्बडा माइनस 1 and mu minus 6. Okay, now next procedure is, क्या करेंगे next procedure? R3 to R3 minus R2. R3 minus R2. Yes, R3 tends to R3 minus R2. Okay, so we have the matrix 1 1 1 6 0 1 2 4, no change. Now here 0 1 minus 1 0, lambda minus 1 minus 2, so lambda minus 3, mu minus 6 minus 4, so mu minus 10. Okay, so here we have the row
इकोलन फॉर्म। ओके, अब रो इकोलन फॉर्म से हमको यहाँ पे ये तीनों का डिस्कशन करना है कि लैम्डा एंड म्यू क्या लेंगे, तो ये तीनों पॉसिबल है। तो ए केस मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो लुक एट हियर एवरीबॉडी। ओके, तब मुझे फर्स्ट केस फॉलो करना है कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए थिंक अबाउट द कंडीशन, कि उसकी कंडीशन क्या था। Rank of A is equals to n. Rank of augmented matrix equals to rank of A equals to variable number. यस, इक्वल टू n नंबर ऑफ अननोन्स। ओके, तो ये सेम होने के लिए व्हाट शुड बी माय लैम्डा। अगर मुझे रैंक ऑफ a स्लैश b रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n चाहिए, तो ये लैम्डा की मैं क्या वैल्यू लूं, तो ये तीनों सेम हो सकता है। 3 equals to 4. lambda not equal to Not equals to 3. Not equal to 3. 4. ओके Lambda belongs to R, not equals to ओके 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो लैम्डा -3, तो आपने बोला, कोई स्टूडेंट ने बोला कि 4 ले सकते हैं सर। हाँ, ले सकते हैं, वेरी गुड। तो ऐसे ही मैं 1 लूं तो चलेगा कि नहीं? चलेगा। हाँ, लेकिन कौन सा नहीं चलेगा? तो लैम्डा इक्वल टू 3 नहीं चलेगा। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 मुझे लेना पड़ेगा। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 के लिए रैंक ऑफ a स्लैश b क्या हो सकता है? 2. 3 होगा। 3 होगा। रैंक ऑफ a क्या होगा? 3। 3. नंबर ऑफ अननोन्स 3 है। 3. तो when lambda not equal to 3, the system has unique solution. So first case, are you understand? Yes. Yes. Okay, then B के लिए चलो, B के लिए सोचते हैं। B के लिए मुझे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए मेरी कंडीशन क्या थी, वो पहले सोचो। सर, तो A में mu belongs to R है। Mu belongs Rank to of augmented R, matrix na? is equal to rank of A less than n. Yes, less than n number of unknowns। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? एनी क्वेश्चन बेटा? A में Sir, mu mu may be considered equal. स्टूडेंट 1 मिनट, 1 by 1 बोलो। हाँ mu हाँ, not अंकित बोलो। हाँ, A में mu not equal to n भी नहीं लेना पड़ेगा। म्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो, ये कंडीशन के लिए म्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यू कुछ भी होगा तो पर भी ये तो सेम ही रहेंगे। देखो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा म्यू ले रहा हूँ 10, तो यहाँ पे 0 बनेगा। तो 0 बनने से वो दोनों के रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब mu belongs to R। म्यू बिलोंग्स टू आर। हाँ, म्यू कुछ भी लेंगे, नो प्रॉब्लम। डन? ओके सर। ओके, अब यहाँ पे देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की मेरी ये कंडीशन है। तो ये इसके लिए मुझे लैम्डा क्या लेना पड़ेगा एंड म्यू क्या लेना पड़ेगा? Lambda 3 and mu 10. Lambda 3 and mu 10. 3 mu 10. लैम्डा इज इक्वल टू 3 ले लिया एंड म्यू 10 ले लिया, तो क्या होता है चेक करते हैं। लैम्डा 3 ले लिया तो ये 0 हो गया, म्यू 10 ले लिया 0। यस, वेरी गुड। तो ये दोनों 0 करने से व्हाट इज माय रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? 2। एंड नंबर ऑफ अननोन्स मेरे 3 है, सो व्हिच इज लेस देन 3। सो ये दोनों कंडीशन रखेंगे तो मुझे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। दैट मींस सिस्टम हैज infinite number of solution. Is it okay? Yes sir। C, Sir. inconsistent। yes बेटा, हाँ क्वेश्चन है। ओके, देन इनकंसिस्टेंट के लिए पहले थिंक अबाउट द कंडीशन। तो व्हाट इज माय कंडीशन? A स्लैश B Augmented matrix not equal to Not rank equal A. to coefficient matrix. अब उस टाइम पे मेरा लैम्डा क्या होना चाहिए एंड म्यू क्या होना चाहिए? चलो सोचो तो।
लैम्बडा 3 एंड नॉट इक्वल टू लैम्बडा 10 3 और म्यू 10 नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 10। ओके, अब कोई सोचेगा हाँ कि सर ये मैं उल्टा करूं तो मींस लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 करूं एंड म्यू इज इक्वल टू 10 करूं तो चलेगा। हाँ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा क्योंकि हाँ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे आप देखो जैसे आपने लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 किया तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10 किया तो ऊपर भी ए बी का रैंक तो 3 ही रहेगा, तो वो नहीं चलेगा। ओके, इसलिए हमको ये लेना पड़ेगा। दैट मीन्स द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन and no solution, then we can say that the system is inconsistent. So is there any doubt in this example? No sir. सर यूनिक No, सॉल्यूशन में sir. तो लेमड़ा की वैल्यू एक ही होनी चाहिए ना, लैम्बडा की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए ना। हाँ फिक्स ही मिलेगा, जब लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 होगा तब आपको फिक्स ही मिलेगा। तो सर 4 नहीं ले सकते लेमड़ा? लैम्बडा बोला ना, आप नॉट इक्वल टू 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 आपने लिया, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि लैम्बडा इज इक्वल टू 4 लेंगे, तो जैसे ही लैम्बडा फिक्स करेंगे तो आपका सॉल्यूशन तो यूनिक ही रहेगा ना, एक्स वाई जेड। ओके सर। ओके, तो इस हिसाब से आपको देखना है। ओके, देन we you can understand here also. नहीं आई है, Sorry, इनकंसिस्टेंट वाला समझ में नहीं आई है। ओके, इनकंसिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 मैंने फिक्स किया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 होने से यहाँ पे मैट्रिक्स में देखो तो जल्दी पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो 3 वाला देखो 1 1 1 6, यहाँ पे 0 1 2 4। अब लैम्बडा इज इक्वल टू 3 कर रहा हूँ तो मेरी एंट्री ऐसे होगी, देखो 0। अब म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे कोई नंबर बचेगा कि नहीं? यस और नो? नो सर। क्यों? फॉर एग्जाम्पल 11 लिया तो 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 आएगा ना। यस सर। फॉर एग्जाम्पल 9 लिया तो 9 माइनस 10 लेंगे तो -1 आएगा, लेकिन कुछ वैल्यू तो मिलेगा ना। यस सर। ओके, तब यहाँ पे देखो इसका रैंक हो जाएगा 2 एंड इसका रैंक टोटल रैंक हो जाएगा 3, तो दोनों डिफरेंस हो गया ना। आर यू अंडरस्टैंड? सर लेकिन वो दूसरा क्यों नहीं ले? हाँ, अब दूसरा क्यों नहीं ले सकते वो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर से बता देता हूँ। चलो, लैम्बडा -3 फॉर एग्जाम्पल आपने सेकंड केस लिया लैम्बडा, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, सो इफ यू कंसीडर लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3, तब मैट्रिक्स कैसे बनेगा देखो 1 1 1 6 0 1 2 4। अब यहाँ पे देखो 0 0 नॉट इक्वल टू 3 होने से कुछ यहाँ पे मिलेगा कि नहीं? 0 नहीं होगा। यस। एंड यहाँ पे म्यू इक्वल टू आप 10 ले रहे हो तो ये तो 100% 0 रहेगा। हाँ, तो अब रैंक ऑफ ए फाइंड करो, कितना आएगा? 3 एंड रैंक ऑफ ए बी फाइंड करो तो ये भी 2 नहीं 3 ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नॉन जीरो एंट्री बैठा है ना। हाँ हाँ, तो 3 आया तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो नो सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड? ओके, सो यू कैन सी हियर ऑल्सो। तो ये मेरा कन्वर्ट कर दिया मैंने रो इकोलन फॉर्म में। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 केसेस हो जाएंगे। इफ लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 देन रैंक ऑफ A/B, दैट मींस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू 3 नंबर ऑफ अननोन्स, दैट मींस द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। जैसे मैंने समझाया ऐसे ही है, लेकिन आपको थोड़ा उल्टी तरीके से सोचना है जो मैंने बताया ऐसे,
तब जाके आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगा एंड म्यू की वैल्यू मिलेगा. इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10, then rank of A/B equal to rank of A equal to 2, which is less than 3 number of unknowns. Okay, therefore the system has infinitely many solutions. If lambda is equal to 3 and mu not equal to 10, then rank of AB equal to 3 and not equal to 2, which is rank of coefficient matrix. So how many students understand this solution? Please raise your hand. And if you have still any doubt, then you can ask me. रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स समझाओ ना. रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ओ बाप रे, तो फिर आगे वाले एग्जाम्पल में आपको पता चल गया था. ओके देखो यहाँ पे रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे मैट्रिक्स क्या था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे देखो 1 1 1 6. ओके, यहाँ पे 1 2 3 10 एंड यहाँ पे 1 2 लैम्डा एंड म्यू था. अब इसको मैंने रो इकोलॉन फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया. ओके, अब रो इकोलॉन फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो 1 1 1 6 नो चेंज, 0 फिर क्या आ रहा है 0 1 2 4 आ रहा है. ओके, 0 1 2 4 एंड यहाँ पे आ रहा था 0 0 लैम्डा -3 एंड म्यू -10. लेकिन अभी मैं ये भूल जाता है ना लैम्डा -3, क्योंकि आपको तो वही समझना है सिर्फ कि रैंक कैसे आएगा. तो यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 1 है. ओके, तो यहाँ पे मैं इसको स्टैंडिंग लाइन कर देता. ओके, तो ये मेरा ए जो है वो आगे वाली एंट्री है मेरी. तो यू कैन सी दिस इज माय ए. ये जो मैट्रिक्स है वो मेरा ए. तो व्हाट इज द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स? 2. ओके, अब इसको साथ में ले लूं 6 4 1 को, तो ये मेरा नया मैट्रिक्स है और उसको तो मैं बोलता हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो अगर ये मेरा मैट्रिक्स है, बीच की स्टैंडिंग लाइन में भूल जाओ तो इसका रैंक क्या होगा? 3. 3. तो हाँ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है, इसलिए उसका रैंक 3 होगा. तो दिस वे यू कैन फाइंड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स. आर यू अंडरस्टैंड? यस सर. ओके, सो नेक्स्ट, किसी को डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े? यस और नो? Yes, sir. ओके. यस सर. Okay, so we go for next example. Solve the system 1 2 minus 2, that means x plus 2y minus 2z equal to 1, 2x minus 3y plus z equal to 0, 5x plus y minus 5z equal to 1, 3x plus 14y minus 12z equal to 5. चलो, which system is given? Non-homogeneous. Non-homogeneous. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिख दिया. ये देखो 1 2 -2 2 -3 1 5 1 -5 3 14 12 -12 1 0 1 5. ओके, तो मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया. ओके, तो प्लीज कन्वर्ट इट इनटू रो इकोलॉन फॉर्म. चलो रो इकोलॉन फॉर्म के लिए ट्रांसफर करने के लिए ट्राई करो तो क्या आ रहा है देखते हैं. थोड़ा जल्दी करना है ना. Try for this.
कर लिया फाइंड रो इकोलॉन फॉर्म? तो आपको उस हिसाब से भी सोचना है हाँ बेटा कि एग्जाम में आपके पास 1 आवर है इंटरनल में, तो 1 आवर में आपको जितने भी क्वेश्चन करना है तो उसको डिवाइड कर देना कि मुझे इतने मिनट में एक एग्जाम्पल खत्म होना ही चाहिए, नहीं तो फिर पेपर लेंथी लगेगा, है ना। तो थोड़ा होमवर्क करना कि मुझे कितने मिनट में ये मैट्रिक्स वाला एग्जाम्पल खत्म करना पड़ेगा, कितने मिनट्स में आपको हायर ऑर्डर का एग्जाम्पल कंप्लीट करना पड़ेगा, तो थोड़ा देख लेना। और मैं आपको कल तक सिलेबस एंड ये जो एग्जाम पैटर्न है ना वो दोनों आपको भेज दूंगा मैं। चलो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, 2, 5 एंड 3 तीनों को 0 बनाना पड़ेगा। तो मैंने 0 बनाया, देखो R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, R3 टेंस टू R3 माइनस 5 R1, R4 टेंस टू R4 माइनस 3 R1। तो यहाँ पे मेरा हो गया 1 2 माइनस 2 1, 0 माइनस 7 5 माइनस 2, 0 माइनस 9 5 माइनस 4, 0 8 माइनस 6 2, ये सबको मिल गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट में R3 टेंस टू R3 माइनस 9/7 R2, तो मीन्स ये दोनों को पहले 0 बना दिया, देखो। एंड R3 टेंस टू R3 प्लस 8/7 R2, सॉरी यहाँ पे R4 आएगा, R4 टेंस टू R4 प्लस 8/7 R2 आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों का इक्विवेलेंस मैट्रिक्स मिलेगा मुझे -10/7, -10/7, -2/7, -2/7। सो माय नेक्स्ट टारगेट इज -10/7 शुड बी 1 और -2/7 विल बी 0। तो -2/7 को पहले 0 बनाएंगे। सो यहाँ पे R4 टेंस टू R4 माइनस 1/5 R2। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा, देखो 0, लास्ट R4 वाला 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो गया। ओके, 0 0 0 0। नाउ नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो R3 को उन्होंने -7/10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरा 1 आ गया, क्योंकि जब मैं गॉस जॉर्डन मेथड करूंगा तब ये 1 मेरा इजी रहेगा 0 बनाने के लिए, तो इसमें मैंने कन्वर्ट करके रख दिया। तो दिस इज माय इक्वेशन 1। अब सबसे पहले रैंक चेक करेंगे, तो व्हाट इज माय रैंक ऑफ AB? 3। रैंक ऑफ A? 3. एंड नंबर ऑफ अननोन्स? 3. 4 मत कर देना क्योंकि यहाँ पे 4 इक्वेशन है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन तो 3 है, X Y Z। ओके, सो कीप इन योर माइंड, यहाँ गलती मत कर देना 4, नहीं तो फिर पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तीनों सेम है, दैट मींस वी हैव द यूनिक सॉल्यूशन। यस और नो? Yes sir. Now I want to find the solution by using Gauss elimination. So Gauss elimination से find करूंगा तो इसको इक्वेशन में ट्रांसफर करो, तो इक्वेशन में ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1 माइनस 7y प्लस 5z इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 1। तो z मेरा मिल गया है, तो सेकंड इक्वेशन से यू कैन सी हियर -7y इज इक्वल टू -2 -5 हो जाएगा इज इक्वल टू -7, तो y मेरा मिल जाएगा 1। ओके, अब y मेरा मिला है, z भी मेरा है, तो आई कैन फाइंड x। सो x प्लस 2 -2 इक्वल टू 1, सो इट गिव्स मी x इज इक्वल टू 1। तो बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा 1 1 1। ओके, इज इट ओके? यस सर। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो हमारे 3 इक्वेशन मिले, z इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, सो वी हैव x इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब गॉस जॉर्डन के लिए हम क्या करेंगे, तो 5 एंड -2 को पहले 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर करना पड़ेगा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R3 and R2 tends to
R2 minus 5R3. ओके, तो ये दोनों ही दोनों आप जैसे करेंगे तब आपका दोनों ही दोनों जीरो हो जाएगा. यू कैन सी इन अवर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो यहाँ पे देखो जीरो हो गए दोनों ही दोनों. अब नेक्स्ट टास्क मेरा 2 को जीरो बनाना है. तो 2 को जीरो बनाने की मैंने पहले क्या किया, R1 को -1/7 R1 से किया, बाकी तो थोड़ा बड़ा हो जाता मल्टीप्लायर. तो यहाँ पे देखो 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 R2 आएगा ना, सॉरी R2 आएगा. यस, या फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक. R2 टेंड्स टू -1/7 R2. यस, यू आर राइट. नाउ R1 के लिए हमको करना है, दैट मींस R1 टेंड्स टू R1 -2 R2. तो अब 2 0 होगा. तो अगर हमने ये किया तो वी हैव दी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0. So this is my reduced row E-column form. Okay, and we are using reduced row E-column form for Gauss-Jordan. तो यहाँ पे देखो गॉस जॉर्डन से हमको इक्वेशंस मिलेंगे. सीधा इक्वेशन मिला देखो, x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1. तो यहाँ पे x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1. So the solution is 1 1 1. So how many students understand this solution? Please raise your hand. And is there any doubt in today's session? Anybody? No, sir. No, sir. No, sir. So next is thank you for your attention. तो ये यूनिट हमारा यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया. ओके सर एग्जाम में